Dear students, today I start de Broglie equation. Louis de Broglie in 1924 suggested that all material particles in motion such as electron, proton, neutron, atom, molecules have a dual nature. What is dual nature? Dual nature कहते किसको है? Dual nature इसको कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल में दो तरह का नेचर पाया गया, एक पार्टिकल यानी कण का नेचर और दूसरा वेव नेचर, तरंग वाला। और इसी दोनों नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए, इसी दोनों नेचर को जस्टिफाई करने के लिए एक इक्वेशन की जरूरत पड़ी थी कि दोनों वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को रिलेट करें। और 1924 में लुई डी ब्रोगली ने ये कहा कि सारे मूविंग पार्टिकल जो है वो वेव से भी एसोसिएटेड होते हैं और पार्टिकल नेचर से भी एसोसिएटेड रहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन के बारे में देखा गया कि इलेक्ट्रॉन के पास पार्टिकल नेचर है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, और उसी तरह से वेव नेचर भी इस पे पाए गए और उसी के आधार पर यह रिलेशन बनाया गया। अकॉर्डिंग टू लुई डी ब्रोगली, द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ पार्टिकल मास m and velocity v is given by the relation lambda is equal to h upon mv, where h is the Planck's constant, has value 6.626 into 10 to the power minus 34 joules second. This is the de Broglie relationship, and how relationship is derived in next slide. We discuss about derivation of de Broglie equation. According to Max Planck, the energy of quantum of radiation is given as E is equal to h nu. Max Planck ने कहा था कि एनर्जी ये वेव जो है कंटिन्यूअस रेडिएशन की तरफ ट्रेवल नहीं करता, बल्कि कई एनर्जी पैकेट्स के साथ के रूप में ट्रेवल करता है। और उसी एनर्जी पैकेट्स का नाम दिया गया फोटोन, और उन्होंने ये कहा कि फोटोन की एनर्जी क्वांटाइज रहती है, और हम कहने का मतलब कि हर एक फोटोन में पर्टिकुलर एनर्जी होती है। और उसी का वैल्यू उन्होंने एक दिया था, उसी पर एक इक्वेशन दिया था, E is equal to h nu, where E is the energy of photon and h is the Planck's constant, nu is the frequency of radiation. और उसके साथ ही साथ इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। साथ ही साथ आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप, वी नो दैट E is equal to mc square, where m is the mass of photon and c is the velocity of light. And this will be considered as equation number 2. From 1 and by equating 1 and 2, we get h nu is equal to mc square. So by equating equation number 1 and 2, we have h nu is equal to mc square. Further, we know that we know that c is equal to nu lambda, where we know that, as you know, that c is the velocity of light, nu is the frequency of radiation of light, and lambda is the wavelength of light. So from equation number 3 and 4, we get h upon lambda is equal to mc, or lambda is equal to h upon mc. This will be considered as equation number 5. कहने का मतलब है कि जब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट किए थे, तो हमें क्या मिला था? हमें मिला था h nu is equal to mc square, जिसको रीअरेंज करने के बाद हमें मिला h nu upon c is equal to mc. इसको इक्वेशन नंबर 3 माना गया। फिर एक रिलेशन था c is equal to nu lambda, और इन दोनों इक्वेशन को कंसीडर करते हैं तो हमें एक रिलेशन मिलता है h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू mc, और लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc, एंड और इसको हम इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं। दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर फोटोन और द पार्टिकल हैविंग वेलोसिटी इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। This equation is applicable for photon, and according to Louis de Broglie, the above equation can also be applicable to material particle by substituting
velocity v in place of c. So we get lambda, we get the wavelength of material particle as lambda is equal to h upon mv, and you know that m into v is called momentum. Therefore the equation can also be written as lambda is equal to h upon p, where p is the momentum of particle. Thus, equation number 6 and 7, 6 or 7 both are known as de Broglie equation. This is the method for, this is the derivation for de Broglie equation. We start from Planck energy equation, then mass energy relation of Einstein, and by equating these two, we get the de Broglie equation as lambda is equal to h upon mv, and v is the velocity of material when it is applicable to material particle, and when it is applicable to photon, then the equation is written as lambda is equal to h upon mc, and also the equation is written as lambda is equal to h upon p, where p is the momentum of particle, and these two equations are called de Broglie equation. Now, what are the experimental facts which suggest that the electron possess dual nature? That is, electron possess particle nature as well as wave nature. Particle nature. The electron possesses the characteristics of particle if it has definite mass, kinetic energy, momentum, and charge. When electron is strike at zinc sulfide screen, it produces a spot of light. This phenomenon is known as scintillation, and this is represented in figure as follows. This is the source of electron. It is anode, and cathode is a discharge tube. When electric field is applied, the electron beam move towards anode, or if we applied magnetic field, then it move towards south pole. If electric and magnetic fields are balanced, then the electron beam travel in a straight line. In ZNS at zinc sulfide screen, it produces a spot of light. This suggests how it is suggests that it is a particle nature, because it has been observed that each striking electron produces one scintillation, and this indicates that the striking electron is localized and not spread out as like wave. कहने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन जहां जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर टकराता है वही स्पॉट लाइट का स्पॉट प्रोड्यूस करता है, और वेव की तरह, तरंग की तरह ये फैलता नहीं है, और ये सजेस्ट करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। और दूसरा एक एक्सपेरिमेंट है, ये है डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट 1927। इन्होंने ये क्या किया, एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन फ्रॉम टंगस्टन फिलामेंट देन एक्सेलरेटेड बाय पासिंग देम थ्रू ए स्ट्रॉन्ग electric field. These electrons were made strike against nickel crystal. The concentric dark and light rings are obtained on the screen, and this diffraction pattern of electron by crystal was similar to that observed by X-rays. कहने का मतलब जैसे इस फिगर में दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन को जो टंगस्टन फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन को ऑब्टेन करने के बाद इसको निकल प्रिज्म में स्ट्राइक किया गया। स्ट्राइक करने के बाद फोटोग्राफिक प्लेट पे इसको इमेज लिया गया। फोटोग्राफिक प्लेट में इसका में देखा गया कि डार्क और ब्राइट फ्रिंज बनाता है, जिसको कहते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न। ये आप लोग जानते ही होंगे कि डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वेव नेचर से रिलेटेड करता है, क्योंकि ये सेम पैटर्न ऐसा एक्सरे में भी, एक्सरे के द्वारा भी पाया गया। क्योंकि एक्सरे एक रेडिएशन होता है जो वेव कैरेक्टर होता है, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन में भी वेव कैरेक्टर होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जो है वेव डिफ्रैक्शन पैटर्न शो किया। तो ये दो एक्सपेरिमेंट शो करते हैं, ये वेरीफाई करते हैं कि इलेक्ट्रॉन में डुअल नेचर होता है, यानी वेव एसोसिएटेड भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। अब
इससे इसका इस्तेमाल कहां पर हुआ? सबसे पहले क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अभी क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या हुआ? आप लोग बोर्स पोस्टुलेट फॉर एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे, उसमें एक पॉइंट था, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी the electron moves in only those orbit for which angular momentum of moving electron is an integral multiple of h upon 2 pi. How this equation is obtained? This equation is explained by de Broglie's equation. How it is explained? Let us discuss. What is MVR? MVR is the angular momentum of electron, where m is the mass of electron, v is the velocity of electron, r is the radius of orbit where electron revolve around the nucleus, and h is Planck's constant, where n is 1 2 3 4, which indicate the orbit where electron revolve. And that de Broglie helps to explain the Bohr's quantization of angular momentum as follows. किस तरह से explain किया? तो उसके लिए देखिए, let us consider electron moving round the nucleus in the form of wave in a circular orbit of radius r. The electron may continuously in phase or out of phase. कहने का मतलब ये वेव जो है कंटिन्यूअस फेज में होता है, आउट ऑफ फेज। फेज और आउट ऑफ फेज का मतलब ये समझिए, मान लीजिए ये जो है सर्कुलर ऑर्बिट है और इलेक्ट्रॉन वेव की तरह ये रिवॉल्व कर, ये इसके ऑर्बिट में अराउंड मूव कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। अगर ये कंटिन्यूअस अगर ये फेज में है तो ये कहीं वेव जो है ब्रेक नहीं करेगा। अगर आउट ऑफ फेज होगा तो कहीं ना कहीं वेव ब्रेक कर सकता है। तो इसमें ये कहने का मतलब है कि उसी सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जहां पर जो सर्कुलर मोशन फेज में हो, यानी वेव इन फेज हो, ना कि आउट ऑफ फेज। पहला ये, और ये इसका मतलब ये हो गया कि इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर ऑर्बिट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, द इलेक्ट्रॉन इज इन फेज। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर सर्कमफ्रेंस जो सर्कुलर ऑर्बिट का सर्कमफ्रेंस है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हो, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 1 2 3 4 वेवलेंथ है, तो इलेक्ट्रॉन फेज में है। फेज में है तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 पाई आर जो कि सरकमफ्रेंस है सर्कल का, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लेमडा होना चाहिए कि अगर जब फेज में हो। अगर इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, देन द इलेक्ट्रॉन इज आउट ऑफ फेज। कहने का मतलब अगर उस सर्कुलर ऑर्बिट का सर्कमफ्रेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ फेज चला जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, जो आपको दो डायग्राम दिखा रहा है, ये वेव इन फेज है और वेव इन आउट ऑफ फेज है। तो इसका मतलब ये हो गया, जो सर्कमफ्रेंस जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होगा तो उसको इलेक्ट्रॉन फेज में रहेगा। अगर सर्कमफ्रेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ नहीं है तो वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ फेज है। इसका तो मतलब क्या हुआ कि मतलब ये हो गया इसका कि 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लेमडा होना चाहिए। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। डी ब्रोगलीज इक्वेशन के हिसाब से हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अगर हम दोनों को इक्वेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 2 पाई आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन एम वी, और अगर इसी को रीअरेंज कर दिए तो हमें क्या मिला? एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। और इसका मतलब यही इक्वेशन जो है, यही चीज जो है बोर्स थ्योरी में भी कहा गया। बोर्स थ्योरी में भी कहा गया कि इलेक्ट्रॉन उसी सर्कुलर ऑर्बिट पर मूव करेगा अराउंड द न्यूक्लियस जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एच अपॉन 2 पाई हो। और ये कहां से आया? डी ब्रोगली इक्वेशन के हेल्प से। और डी ब्रोगली इक्वेशन का हेल्प से कैसे हुआ? क्योंकि उसी सर्कुलर ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जिसका सरकमफ्रेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हो। और इसका मतलब इक्वेशन हो गया 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लेमडा, और डी ब्रोगली इक्वेशन के हिसाब से लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है। और दोनों को जब इक्वेट करेंगे बाय इक्वेटिंग 1 and 2, वी गेट 2 पाई आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन एम वी, और बाय रीअरेंजिंग वी गेट एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। एंड दिस इज द बोर्स पोस्टुलेट फॉर एटॉमिक स्ट्रक्चर। बोर्स पोस्टुलेट और एक जो बोर्स पोस्टुलेट जो था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, उसका एक ये इक्वेशन है। Thus,
the angular momentum of moving electrons should be in integral multiple of wavelength. In other word, the angular momentum of electron is quantized. कहने का मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम, जो मूविंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होना चाहिए. दूसरे शब्दों में कहा जाए कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड. क्वांटाइज का मतलब एक फिक्स वैल्यू होता है. तो आज हमने डिस्कशन क्या किया? डी ब्रॉगली इक्वेशन. डी ब्रॉगली इक्वेशन ये बताता है कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल मूविंग में हो, उसके साथ पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी एसोसिएटेड रहता है, और वेव नेचर एसोसिएटेड रहता है. उसके पर इन्होंने इक्वेशन डिराइव किया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. और इसका डेरिवेशन के बाद हमने डिस्कशन किया, डिस्कशन क्या किया, दो नेचर को कैसे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया गया. पार्टिकल नेचर में देखा गया, जब जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है तो एक स्पॉट ऑफ लाइट देता है, इसको कहते हैं स्किंटिलेशन. और स्किंटिलेशन जो है लोकलाइज रहता है, वेव की तरह स्प्रेड नहीं रहता है. ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन में जो है पार्टिकल नेचर है, और वेव नेचर डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन बीम को निकोल प्रिज्म से स्ट्राइक कराते हैं और फोटोग्राफिक प्लेट में डार्क और ब्राइट रिंग्स आने लगता है, जिसको कहते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न. और ये डिफ्रैक्शन पैटर्न एक्सरे में भी पाया गया. जब एक्सरे को भी निकोल प्रिज्म से स्ट्राइक कराए तो डिफ्रैक्शन पैटर्न पाया गया. एक्सरे वेव होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन में भी वेव कैरेक्टर हो गया. और उसी के थ्रू, डी ब्रॉगली इक्वेशन के थ्रू हमने ये भी दिखाने की कोशिश की, जो बोर्स पोस्टुलेट था कि उसी इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ओनली दोज ऑर्बिट्स फॉर विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.